سب سے پہلے پہنچے اس چوٹی پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 دن قیام کیا تھا. لبیک قد لبیت لک لبیک. سامنے ہے جبل رحمت اور ہماری بیک سائڈ پہ ادھر سارا جو ہے نا عرفات ہے. آپ کے ساتھ بھی زیارتیں جو ہے نا وہ شیئر کرتے ہیں جی. ماشاءاللہ لا شریک لک واللیل لما انحلک. وہ جگہ ہے جی جہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مطلب کہ اس جگہ پہ لے کے آئے تھے. اقرا باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق. سبحان اللہ. جبل نور. مجار المنسلک علامة. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. کیسے ہیں آپ سب؟ اللہ پاک آپ سب کو سلامت رکھے جی. آمین ثم آمین. مکہ کی گلیوں سے صبح بخیر. السلام علیکم میرے پیارے بہن بھائیوں، کیا حال ہے؟ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. صبح صبح کا وقت ہے جی اور آج جو ہے نا ہم لوگوں نے جانا ہے باہر زیارتیں کرنے کے لیے. ادھر سے آ جاتے تو اس کے لیے جو ہے نا سعودی لباس خریدنے کی کوشش کر رہے تھے. یہاں سے دیکھتے ہیں اگر کوئی مل جاتا ہے ہمیں تو صحیح ریٹ پہ، کیونکہ کل جو ہم نے دیکھا تھا تو تھا جی 10 ریال. اب دیکھتے ہیں کہ ہمیں سعودی لباس کتنے ریٹ میں ملتا ہے. اور کل یہاں پر دیکھا تھا اسٹال لگا ہوا تھا، لیکن آج تو مطلب نہیں آ رہا. بہت شوق ہے. اب مجھے شوق ہے کہ میں یہاں پر نا سعودی لباس جتنے دن بھی ہوں وہ پہن کے تو پھر مکہ کا ایکسپلور کرنے. آج ہم جا رہے ہیں جی زیارتیں وغیرہ کرنے کے لیے انشاءاللہ. جی بڑی مشکل سے ہمیں شاپ ملی ہے اردو جاننے والوں کو، کیونکہ جس سے بھی بات کر رہے ہیں وہ عربی میں بات کر رہے ہیں. ہمیں عربی نہیں آتی، ان کو انگلش نہیں آتی. بھائی مل گئے تو یہ اردو ہیں، اردو جانتے ہیں. صرف سرائی کی تو یہ والا ہم نے جی یہ میرے لیے پسند کر لیا جی رابعہ نے، اور جواد کے لیے دوسرے والا لے رہے ہیں. یہ دیکھو رابعہ اس کو پورا آ جائے گا. نو 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 بڑا ہے بڑا بڑا ہے یہ بڑا ہے. باقی ادھر جی ماشاءاللہ برقعے بھی دیکھیں کتنے خوبصورت. رابعہ یہاں سے تمہیں برقعہ مل جائے گا بہت یہاں سے زبردست. مجھے عربی برقع نہیں ملے گا، بڑے دن کا ملے گا. یہ جواد کو پورا ہے. ہاں یہ پورا ہے نا. ہاں چلیں جی ماشاءاللہ. چلیں جی یہ ہم نے اب لے لیا ماشاءاللہ. اچھا جی آپ سب کو ایک اور بھی بات بتاتے چلیں کہ بالکل اگر آپ یہاں پر ہیں تو بالکل ابراہیم خلیل روڈ پہ اندر آ کے تھوڑی سی ادھر پوری مارکیٹ ہے ادھر اس طرف، اور ایسے بالکل آپ سیدھا راستہ آگے چلے جائیں گے تو آگے ساری مارکیٹ ہے. لیکن مہنگائی یہاں پر بہت ہے اور کافی سارے دوستوں نے بھی کہا کہ آپ شاپنگ مدینہ سے کیجئے گا. ایک ہم نے لے لیا ہے بس ڈریس، اب جو ہے نا باقی شاپنگ ہم انشاءاللہ کریں گے جی مدینہ سے. تو ابھی جی چل کے کپڑے چینج کرتے ہیں اور چلتے ہیں جی زیارتوں پہ. جی الحمدللہ فائنلی وہ ڈریس پہن لیا ہے جی. ابھی وہ رابعہ وہ بھی تو چاہیے نا، وہ بھی تو پورا عربی بندہ نظر آیا نا، ہے نا. ایک وہ لینا ہے ابھی اور چلتے ہیں جی زیارتوں کی طرف. بچے بھی ماشاءاللہ تیار ہیں جی. السلام علیکم. ماشاءاللہ. جواد صاحب ٹنڈی ہیں. وعلیکم السلام. چلیں رابعہ؟ چلیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ٹیکسی والا بھائی جو ہے وہ بھی ہمارا پاکستانی ہے. ایک بھائی نے یہاں سے نمبر دیا تھا، اس کو بلایا ہے تو وہ ابھی آیا ہے جی ادھر. وہ سامنے جو پول نظر آ رہی ہے وہاں پر، وہاں رکا ہوا ہے. آگے ادھر ٹریفک نہیں آنے دیتے تو وہاں چلتے ہیں، وہاں چل کے تو پھر اس کو ریسیو کرتے تو پھر آتے ہیں. یہاں پر سعودی گورنمنٹ کا نا بہت اچھا رول ہے، اگر کوئی کسی کو تکلیف ہے تو پھر یہاں پر ہاسپٹل بھی سامنے جی بنایا ہوا. وزارت صحت مرکز صحیح الحجاج ہیلتھ سینٹر یہ سامنے. ہاں جی اگر مطلب یہاں پہ جو عمرے کے لیے آتے ہیں یا ان کو کوئی تکلیف ہو جائے تو یہاں پر فری آف کاسٹ جو ہے نا ان کو سب دیا جاتا ہے جی. یہ کبری کے پاس بالکل یہ ہاسپٹل ہے. السلام علیکم. کیسے ہیں بھائی جان آپ؟ ٹھیک ہے. چلو بچوں بیٹھو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو گاڑی جی ہماری آ چکی ہے یہاں سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بھائی جی ہمیں ملے ہیں اور بھائی بھی میرے خیال میں کہاں سے ہیں آپ؟ پاکستان سندھ سے. کراچی سے. ماشاء اللہ. کراچی کون سی جگہ سے ہیں آپ؟ ماشاء اللہ. تو جی بھائی یہاں سے ہمیں ہوٹل سے ایک بھائی نے نمبر دیا تھا تو ابھی ہم چل رہے ہیں جی زیارتیں کرنے کے لیے. ماشاء اللہ. سب سے پہلے پہنچے ہیں جی ہم الحمدللہ جبل ثور. یہ سامنے ہے، ادھر تھوڑا آگے چل کے آپ سب کو دکھاتا ہوں جی.
ये कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं। ये सामने बिल्कुल जो आपको चोटी नज़र आ रही है जबल सौर की, इस चोटी पे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 दिन क़याम किया था इस जगह पे। सुबहान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह पहुंच गए हैं ऊपर जबल सौर पे। ऊपर चढ़ने के रास्ते काफ़ी सारे हैं, लेकिन हम करो कि मुझे ना जैसे रोने वाली सिसके नहीं होती वो आ रही है। अल्लाह पाक करम करे जी। अल्लाह पाक ऊपर ने मेरा और मेरे बच्चों का नसीब इतना अच्छा बनाया, किस्मत में सोचा नहीं था कि करमट लेगी नसीब मेरा। सुबहान अल्लाह। और मुझे यहाँ तक पहुँचाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक आप लोगों को भी ये ज़ियारतें कर खूबसूरत ज़ियारत देखना करना नसीब फरमाए। हमारी दुआएं आपके साथ है। ऊपर चढ़ने के काफ़ी सारे रास्ते हैं, यहाँ से भी ऊपर जाया जा सकता है, वहाँ से भी, और वो सामने वहाँ से बिल्कुल ना ऊपर आप जा सकते हैं। ऊपर नहीं जाएंगे लेकिन ऊपर जाने के लिए काफ़ी सारा टाइम चाहिए। ऊपर जाने के लिए हाइट जो है वो काफ़ी ज़्यादा ऊंची है। तो राबिया तो रो रही है, इमोशनल हो रही है। दुआ मांगो अपने लिए, दुआ मांगो अपने बच्चों के लिए, दुआ मांगो अपने अम्मी अब्बू के लिए, दुआ मांगो अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत करे और हमारी इस हाज़री को अपनी बारगाह में कबूल करे। ये वो रास्ते हैं जी जहाँ से हमारे प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुज़र हुआ, इन्हीं रास्तों से। और आज हमारे लिए ये आसानी है। अभी तो रोड बने हुए हैं, बंदा आसानी से आ सकता है, जा सकता है, लेकिन अब यहाँ से इन पत्थरों से अंदाज़ा करें कि ये पत्थर कैसे हैं और उस ज़माने में यहाँ पर क्या होगा, किस तरीके से वो आते होंगे, जाते होंगे, कितना कठिन और कितनी मुश्किल से हमें इस्लाम मिला है। और इतनी मुश्किल से हमें इस्लाम मिला। यहाँ से आइडिया लगाएं कि रास्ते जो है वो किस कदर दुश्वार होंगे और किस कदर ख़तरनाक भी रास्ते हैं ये सारे। अब तो आसानियाँ बन गई हैं, रोडें बन गई हैं, गाड़ियाँ आ रही हैं। पहुँच गए हैं जी अभी वापसी गाड़ी में। बस अल्लाह पाक हमारी हाज़िरी को कबूल करे, आमीन। थोड़ा सा आपको रास्ते के बारे में भी गाइड करते चलें। जबल सौर से अभी हम जा रहे हैं मैदान अराफात, और ये कितना रास्ता है? तकरीबन होगा 15 किलो 20 किलो हो जाएगा। 15 से 20 किलोमीटर है जी जबल सौर से मैदान अराफात। दूसरी ज़ियारत हम वहाँ करेंगे, उसके बाद फिर गार सूर तो अभी हो गई है। अच्छा, जबल इसमें अरफात में जाएंगे, यानी अरफात के अंदर, ठीक है ना। जबल रहमत है, मस्जिद नमरा है, फिर उसके बाद जो है मुज़दलिफ़ा आ जाएगा। इस तरीके जो आएंगे आपको बताते जाऊंगा। भाई माशाल्लाह अच्छे तरीके से गाइड कर रहे हैं। आप सबके साथ भी ये गाइडनेस जो है शेयर कर रहे हैं, इस वजह से कि कल अल्लाह पाक आपके नसीब में करे यहाँ आना, तो आप हमारी इस वीडियो से काफ़ी सारा जो है ना फ़ायदा ले सकते हैं कि पहले कहाँ आना है, फिर कहाँ आना है, और फिर जो है ना आपने कहाँ कहाँ जाना है। ये सामने हम जा रहे हैं जी, ये सामने है जबल रहमत, और हमारी बैक साइड पे इधर सारा जो है ना अराफात है, मैदान अराफात। तो ये वो मकाम है जी जहाँ पर मिले थे, उनकी दुआ कबूल हुई थी। इस वजह से इस जबल का नाम जो है वो जबल रहमत है। हमारी दुआ भी कबूल करेगा आप सब के हाथ। ये वो जगह है जहाँ पर आपकी मांगी हुई दुआ कभी रद्द नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ पर जैसे राबिया ने बताया भी है कि आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हवा की जो दुआ है वो कबूल हुई थी। अल्लाह पाक ने उनको जो है ना आपस में दोबारा मिला दिया था। तो चलते हैं, ये खूबसूरत सी ज़ियारत करते हैं और आप सबके साथ भी शेयर करते हैं। सामने सीढ़ी हैं, वहाँ से ऊपर जाना है। अच्छा, आप सबको एक और भी बात बताते चले कि अगर कभी भी आप यहाँ पर आए हैं तो यहाँ पर आपको पीने के लिए पानी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। इंटर होते ही आपको पानी मिल जाएगा। आप ऊपर चढ़ें, जाएँ, पिएँ और दुआ करें। जज़ाकल्लाह। इसके ऊपर जाने के काफ़ी सारे रास्ते हैं, उस तरफ से भी हैं, लेकिन उस तरफ से सीढ़ियाँ नहीं है, डायरेक्ट पत्थरों के ऊपर से जाना पड़ता है। यहाँ से सीढ़ी हैं, यहाँ से चलते हैं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी जो है जी जबल रहमत के ऊपर पहुँच चुके हैं यहाँ पर, और राबिया भी और बच्चे भी वहाँ पर खड़े होकर खसूसी तौर पर दुआएँ कर रहे हैं। जैसे मेरी बैक साइड पे आपको ये सारा अराफात, मैदान अराफात नज़र आ रहा है। और जैसे कि आप सबको पता भी है कि क़यामत वाले दिन इसी मैदान में पूरी दुनिया जो है ना वो इकट्ठी होगी। अल्लाह पाक हमारे हाल पे और आप सबके हाल पे करम और रहम फरमाए, आमीन सुमान। के साथ भी ज़ियारतें जो है ना वो शेयर करते हैं जी। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, बच्चे भी जो हैं
ये भी दुआ जो है ना करके आ गए हैं कि अल्लाह पाक अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमाए। अल्लाह आमीन पाक ने सुम्मा जैसे आमीन। दादा आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हवा की दुआ कबूल की थी, और अल्लाह पाक ऐसे हमारे भी तमाम बहन भाइयों के हक में दुआ कबूल करे, हमारे हक में दुआ कबूल करे, और हमारे बच्चों के हक में ये दुआ और आप सब के लिए ये ज़ियारतें अल्हम्दुलिल्लाह आप सब में से जितने भी बहन भाइयों ने मैं कहा था दुआ के लिए, सबके लिए हमने हर और जगह हर पे ज़ियारत पे तमाम जो भी इस वक्त वीडियो देख रहे हैं सबके हक में दुआ की है जी। और हर अल्लाह ज़ियारत पे कर पाक रहे हैं। सबके हक में कबूल फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। إلهنا ما أعدلك مليك كل ما अल्हम्दुलिल्लाह दुआ मांग के तो जा रहे हैं अभी जितना भी मेरे टैक्सी में। पैरों में दर्द था, जितनी भी मेरी तबीयत नासाज थी, लेकिन हिम्मत करके ऊपर चढ़ गई हूँ, और सबके हक में दुआ देखें मांग जी, रही हूँ। ये शर्फ और नसीब की बात है कि अल्लाह पाक ने शर्फ दिया है और हमारे नसीब में था, वरना ऐसे मकामात के लिए पता नहीं कितने जो है ना लोग तरसते हाँ हैं, जी। और हम भी तरसते थे। हाँ जी, अब यकीन करें कि जीने का जो मकसद है वो हमारा पूरा हो चुका हो है। चुका है। अब मौत का डर नहीं, बिल्कुल नहीं पहले है, कहते थे ना ना, ही कोई ये फिक्र। मौत जरा ठहरे जा मदीने अल्लाह में पाक जाने से दे। दुआ मांगी थी कि पाक परवरदिगार मरने से पहले अपने घर का तवाफ अब नसीब डर करना। नहीं है मौत अल्लाह का। पाक ने दुआ कबूल की है अल्हम्दुलिल्लाह, और ये ज़ियारत नसीब में की है। अपने घर का तवाफ कराया है हमसे, खाना काबा के सामने नमाज़ पढ़ने की तौफीक दी है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक आप सबके नसीब में भी ये दिन करे जी, आप सबको भी ये सब ज़ियारतें नसीब करे। आमीन सुम्मा आमीन। आमीन। आइसक्रीम, हाँ आइसक्रीम खानी है, हाँ खाओ खाओ खाओ। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह जबले रहमत से जो है ना हो के, तो अभी मेरे ख्याल में भाई लेके जा रहे हैं हमें निमरा जा रहे हैं। मस्जिद अल निमरा। निमरा, मस्जिद निमरा हो गया। माशाल्लाह ये सामने है। ये सामने है जी मस्जिद अल निमरा, ये सामने इंशाल्लाह ये है जी मस्जिद अल निमरा। और भाई से मैंने पूछा तो भाई बता रहे हैं कि ये वो मस्जिद है जहाँ पर हज के दौरान खुतबा अदा किया जाता है। पूरा साल ये मस्जिद बंद रहती है और सिर्फ हज वाले दिनों में खोली जाती है। सिर्फ और सिर्फ हज वाले खुतबा यहाँ होता है जी। माशाल्लाह बहुत बड़ी मस्जिद है। बैक साइड से देखें आप। लोग लगे हुए हैं। हाँ बिल्कुल लॉक है जी, बंद है बिल्कुल। जैसे भाई बता रहे हैं सिर्फ हज वाले दिनों में ही खुलती है। माशाल्लाह जी, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह हमें भी नसीब करेगा इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। दोनों का सिस्टम एक जैसा है, ये भी मस्जिद जी साल में एक दफ़ा खोली जाती यानी है, हज वाले दिनों में खुली होती है। बस सिर्फ और सिर्फ हज वाले दिनों में खुलते हैं जी। सुभान अल्लाह। अभी गुजर रहे हैं जी हम मिना के पास से। यहाँ पर जो है ना हुज्जाज कराम जो हज वाले दिनों में आके यहाँ पर ठहरते हैं जी। ये सारा मिना आ रहा है, बने हुए। देखें खैमे बने हुए माशाल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कभी अल्लाह पाक हमारे नसीब में भी यहाँ पर आना नसीब करेगा इंशाअल्लाह अल अज़ीज़। अच्छा जी, आप सबके साथ ये सामने आपको मैंने जूम करके दिखाया, ये जो बीच में एक वो बना हुआ है कुबा सा, तो ये वो जगह है जी जहाँ पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को मतलब कि इस जगह पे लेके आए थे ज़िबा करने के लिए। तो जहाँ से हमारी ईद उल अज़हा जो है वो शुरू हुई थी, जहाँ पर अल्लाह पाक ने फिर जन्नत से जो है ना दुम्बा उतारा था। सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। ये वो जगह है जी। सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। अच्छा जी, ये जहाँ पर रुका हुआ हूँ मैं, ये सामने जो मस्जिद आपको नज़र आ रही है, ये हज वाले दिनों में खुलती है, भाई ने बताया। और यहाँ पर ज़्यादातर जो है ना पैगम्बर जो है ना अल्लाह पाक के, उन्होंने यहाँ पर नमाज़ें अदा की हैं। सुबहान अल्लाह, कितना खूबसूरत मंज़र है जी। सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। जी अभी रुके हैं, ये सामने आपको जो है ना ये जो ब्लैक नज़र आ रहा है, ये ऊपर वाइट है और इसके अंदर ये जो वो ब्लैक चीज़ नज़र आ रही है, ये शैतान है भाईजान। ये शैतान है जी। इधर कंकर मारे जाते हैं, लेकिन अभी जो है ना सऊदी गवर्नमेंट ने बंद किया हुआ है। हज वाले दिन में ये सिर्फ हज वाले दिन में खोला जाता है। अभी इन्होंने बिल्कुल बंद किया हुआ है इसको। सुबहान अल्लाह जी, ये है जबल नूर। सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। और जबल नूर पे जाने के लिए मेरे ख्याल में रास्ता यहाँ से घूमता है, यहाँ से। सुबहान अल्लाह।
माशाल्लाह। अहमद थोड़ा सा क्लोज आके गाड़ी रोकी है जी। यहाँ पर कुरान पाक की पहली आयत नाजिल हुई थी, इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक खलकल इंसान मिन अलक। सुबहान अल्लाह, जबल नूर। अब इसके ऊपर जाने का रास्ता भाई कह रहे हैं कि दूसरी साइड से है, लेकिन ऊपर जाने के लिए कम से कम 1 से 1.5 घंटा लग जाता है ऊपर चढ़ते चढ़ते, ऊपर जाते जाते, क्योंकि ऊपर की चढ़ाई 3 बहुत घंटे मुश्किल है। लगेंगे आने जाने में। अल्लाह पाक हमारी इस हाज़िरी को कबूल फरमाए और आप सबकी आंखों को भी ठंडक पहुँचे जी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पहुँचे हैं जी अभी जन्नतुल माला के पास, ये कब्रिस्तान, लेकिन बंद किया हुआ है इसको, रास्ता इसका बंद किया हुआ है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वीडियोस में देखा करते थे जी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने अपनी आंखों से देखना नसीब किया है, अल्हम्दुलिल्लाह। अब इसके अंदर जो है ना कब्रें वगैरह, कब्रें जो हैं, अब उनकी हमें तारीख़ मालूम नहीं है कि सहाबा कराम की किस तरफ हैं और दूसरी किस तरफ हैं। और देखो जमीन बराबर है, देखें जी, सिर्फ बिल्कुल बराबर ज़मीन बनाई हुई, ईंटों के सिर्फ जरिए। है ना ईंटें वगैरह ऊपर रखी हुई हैं, बस। चले हाँ जी, हाँ जी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। और ये वाली मस्जिद भाई बता रहे हैं कि मस्जिद जिन, पीछे है वो। पीछे वाली। अच्छा पीछे थी, हाँ जी, हाँ जी। मैं पीछे समझा है। शायद इधर ये भी मस्जिद है ना। हाँ, ये इसका हिस्सा है। अच्छा सही सही सही। और सामने जी ये आ गया क्लॉक टावर। हाँ जी, हमारी मंजिल। हाँ जी। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह तमाम ज़ियारतें करके तो अभी पहुंच गए हैं जी रूम पे। आप सबको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइए। आप सबके लिए भी बहुत सारी दुआएं की हैं, हाँ जी। अपने लिए भी बहुत सारी दुआएं की हैं, और ये दुआ की है कि अल्लाह पाक उन सबको भी ये तमाम ज़ियारतें देखना नसीब करे कि जो इनकी ख्वाहिश रखते हैं। अल्लाह पाक आप सबकी नेक दिली मुरादें पूरी फरमाए। अल्लाह पाक आपको काबे का तवाफ़ नसीब करे, मक्का मदीना की तमाम ज़ियारतें नसीब करे। जिन हमारे बहन भाइयों के वालिदैन इस दुनिया से जा चुके हैं, अल्लाह पाक उनकी बेहिसाब मग़फ़िरत फरमाए, और हमारे और वालिदैन की भी। जिनके हैं अल्लाह पाक उनका साया अपने बच्चों पे हमेशा कायम रखे। आमीन सुमा आमीन। तो इजाज़त चाहेंगे इस वीडियो को यहीं पर अख्ताम करते हुए, क्योंकि अभी हमने जाना है नमाज़ पढ़ने के लिए हरम में। तो फिर इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह ने के पास।